Mittal, welcoming you all back to another session of Must Read Current Affairs. The date of the day is 8th of February 2020, and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exams perspective. So let's begin this particular session. And to all the new learners who have got associated with us for the very first time, please allow me to introduce to them few of the benefits of an academy subscription first. If you take an academy subscription, then you definitely get unlimited access to all the educators, their platform, on the platform of an academy, and you also get here live classes which make sure that on the real time manner you are able to interact and engage with the faculty. You get live test and doubt clearing sessions at regular intervals जो ensure करते हैं कि आपका proper assessment होता रहे और कोई भी gray area ना बचे आपका during this preparation of yours of civil services examination. You can easily take an academy subscription by downloading an academy's learning app and installing it on your mobile phone. After this, you have to choose two. You will be getting an option of choosing either of the two subscription plans. First is plus subscription and second is iconic subscription. If you go for the plus subscription, the duration plan ranges from 1 month to 36 months. You can opt for any of the plan depending upon your own demand and requirement. But the recommended plan here would be an annual subscription plan which will cost you 49,500 rupees. You can avail extra 10% off by applying my code NAMAN, and then the final price would be reduced to 44,550 rupees. If you take an iconic Unacademy subscription plan, then it is a bit expensive, as also it has certain additional benefits like that of personal coach, mains question answer practice, personalized feedback, study planner, and so on. Its annual price is 69,500 rupees. You can avail here as well 10% discount by applying my code NAMAN, that is Naman, and then the final price would be reduced to 62,550 rupees. There are also optional subscription plans available ranging from 1 month to 36 months. You can opt for any of the optional subscription plan depending again on your demand and requirement, but the annual plan here would cost you 27,500 rupees. You can avail here as well 10% off by applying my code, and the final price would be reduced to 24,750 rupees. डेडिकेटेड बैचेस अगर आपको ज्वाइन करने हैं जो अनअकैडमी ने रोल किए हैं फॉर द प्रॉब्लम्स प्रिपरेशन, तो उसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में से कोई एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम 1st of March ऑल्सो द डिस्काउंट कोड इज़ गोना गेट रिड्यूस्ड. दैट इज़ जो आपको बेनिफिट अभी मिल रहा है 10% का बाय अप्लाइंग माई कोड नमन, ये रिड्यूस हो जाएगा टू 5% आफ्टर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगर आपको प्लान्स ऑप्ट करने हैं, ईदर प्लस और आइकॉनिक. आइकॉनिक में भी रिन्यूअल होने वाला है फीस का, सो अगेन द प्राइस सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ द आइकॉनिक प्लान वुड गो अप. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, February is the best month for you ideally. Okay, let's come on to the articles of the day. So first article here talks about India EU relations. ऑल्दो ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो आज के हिंदू में आया है, बिकॉज इसमें उतना कोई रेलिवेंट पॉइंट्स नहीं है हमारे लिए फ्रॉम द एग्जाम्स परस्पेक्टिव, और ना ही आपको ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत है जो आज पीआईबी में आया है. आई जस्ट हैव टेकन दीज टू आर्टिकल्स टू गेट एन एक्सक्यूज़ सो दैट हम इंडिया EU रिलेशंस को ख़त्म कर सकें, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से एक पेंडिंग टॉपिक था. हमने इंटरनेशनल रिलेशंस ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, लेकिन सिर्फ इंडिया EU रिलेशंस हमारे बच रहा है. अपार्ट फ्रॉम फ्यू रिलेशंस एज वेल, एक इंडिया पाकिस्तान हमने डीप में नहीं देखा, इंडिया US अभी तक हमने डीप में नहीं देखा, एंड सो ऑन. तो इंडिया EU के बारे में आज हम डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे आपको एम्फोसिस देना है फ्रॉम द एग्जाम्स परस्पेक्टिव, एंड सो ऑन. राइट. So talking about India EU relations, you need to trace this relation back from 1960s onwards, when after the Treaty of Rome, European Union came into being. तो यूरोपियन यूनियन उस वक्त नहीं आया था बेसिकली, लेकिन यूरोपियन यूनियन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ रोम ऑफ 1957, एंड देन द एस्टैब्लिशमेंट टुक प्लेस ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC. So with this European Economic Community, India had established its ties, and India was one of the countries, first amongst the countries to have established its ties with the EEC.
लेकिन आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं दोज आर वेस्टर्न लिबरल इकोनॉमीज. सो ऑब्वियसली जो इस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1960s की, इस टाइम कोल्ड वॉर काफ़ी हद तक प्रेवलेंट था एंड द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ब्लॉक्स, socialist bloc, capitalist bloc, that is the US bloc and the USSR bloc. So obviously there was an alignment of EU towards US, and India back then had officially embraced NAM, non-aligned movement, and was practically more inclined towards the USSR bloc, as it is manifested through our preamble, through our constitution, through the 5-year plans, if you go through them, which were rolled out during that time, that is during the Cold War era. So we could not have developed good relations apart from the trade and commerce relations. So trade and commerce की अगर मैं बात करूँ, so that was good, that was going on. But if you talk about political engagements, strategic engagements, so those were not very much realized during the Cold War era. And the relations slightly picked up after the 1990, because इस वक्त कोल्ड वॉर भी एंड हो गया था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर के साथ. इंडिया ऑल्सो हैड एम्ब्रेस द एलपीजी रिफॉर्म्स. सो जो प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा था इंडिया का, जो प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी थी हमारी, वो भी अब लिबरलाइज होना स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम 1990s ऑनवर्ड्स. लेकिन फिर न्यूक्लियर टेस्ट हुए, पोखरान टेस्ट 1998 में, एंड यू ऑल नो दैट यूएस ने सैंक्शंस हमारे अगेंस्ट में स्लैप कर दिए थे. एंड मेनी ऑफ द लाइक माइंडेड कंट्रीज, और यू कैन से द अलाइज ऑफ यूएस, fell into the line of the US, and they disengaged with India. They did not then enjoy that kind of relationship with India. तो यही देखा गया EU के साथ भी. तो इसीलिए 1990s की अगर मैं बात करूं तो एक ही सिग्निफिकेंट मेजर डेवलपमेंट हुआ था 1994 में, जब इंडिया और EU ने ये डिसाइड किया था दैट वी आर गोना टेक आवर रिलेशंस बियॉन्ड ट्रेड एंड कॉमर्स. So it was only decided but not formalized, and within there was this Pokhran test. तो उसके बाद sanctions लग गए, and it was possible only in 2004 when we significantly elevated our ties with the EU and we gave strategic partnership recognition to this relationship. So we became strategic partners in 2004, and before this, first EU India summit took place in Lisbon in the early 2000. So this is also called as Lisbon Treaty, जिसके थ्रू हमने फॉर्मलाइज किए अपने रिलेशंस. हम एक फेज से बाहर आए जहां हम लोग उतने हाई लेवल एंगेजमेंट्स नहीं कर रहे थे. मोर और लेस आवर रिलेशनशिप वाज restricted to trade and commerce. That was also not very much flourishing, right? So this development of the relationship can be traced back to the 21st century, that is from the year 2000 onwards. You can easily find the elevated relationship between India and EU, and it further got the recognition of a strategic partnership in the year 2004. So since then we have been conducting annual level EU India summits, और अभी तक ऑलमोस्ट 15 समिट हो चुकी हैं. द लास्ट समिट दैट टुक प्लेस वाज इन जुलाई 2020, और इसके काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं आउटकम्स जो अभी हम देखेंगे, दैट व्हाट आर द मेजर आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट. लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चीज़ें हम यहाँ पे और ट्रेड्स कर लेते हैं. लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, दैट वाई EU इज इम्पॉर्टेंट टू अस. So let us get back to our old approach, the best approach that we say, that what India can give to EU and what EU can give to India. Simple. So India can give to EU market, India can give to EU skilled human resource, India can give to EU maritime security, and also access to the South Asia market, because India is naturally the leader of South Asia, or the Asian subcontinent, you can say. What India can get from EU? So India can definitely get from EU technology in the sense of defense, in science and technology, in sustainable development, and so on, because the countries out there are well advanced countries. They hold expertise, they have the funds, resources. So definitely through the technology transfer, we are set to gain a lot from the EU and the countries therein in terms of technology transfer. Apart from this, we are definitely get investment. So they are in need of good market where the countries can invest, and we are the good market, so we are
to get investment from the European Union. Apart from this, definitely our ambitions of becoming global leader, of reforming global institutions, multilateralism, can be realized if UN or if EU gives us the support, much required support. And also you will find that EU, most of the countries of European Union or European Union itself is in favor of reforming multilateralism, global institutions. So here we find a convergence. So this is definitely a good point of India, point for India, that we can get the permanent membership at UNSC and UN reforms. Then you can talk here about climate change, urbanization, sustainable development, the key requirements of India, which are definitely to be plugged through this relationship, as EU again holds expertise out here. Talking about trade and commerce. So EU is the largest trading partner of India. It is very important to be learned out here that EU is the largest trading partner of India. Bilateral trade here hovers near around $90 billion and $110 billion. So if you talk about individual countries, then it is US with which we have the highest trade relation or the bilateral trade. But if you include EU as well in the overall bilateral relations, if you treat EU as a single entity, then it would be EU with which we have significant trade relations. So it is our highest trading partner. Apart from being the highest trading partner, EU also is the region where we send largest number of our exports. So it is the largest destination for our exports. EU is also the largest source of FDI towards India. And if you do not include EU as an entity, then the country would be Singapore in terms of FDI, then it would be US and so on. But if you include EU as an entity, so it is the largest source of FDI as well to India. So definitely you can see here that trade and commerce is the domain which is most emphasized, which is most important both for EU and India. EU is looking for a huge market and India is in need of investment, technology and so on. So here is the area of convergence, right? Okay. Talking about the 15th summit, what were the major outcomes of this 15th summit? So the first major outcome here was that we both decided to come up with a roadmap 2025. Now what is this roadmap? This is a document which will guide both of us or our relationship to enhance the strategic partnership in the next 5 years. So through this roadmap, we would be guiding our strategic partnership for the next 5 years. Now why it is important? Simple है, आपने एक consensus achieve किया है, so it becomes very easy for your relationship to be proceeded or to be accelerated in the next 5 years. So this is why it is important कि आपने एक रोड मैप आपने डिराइव कर लिया, राइट? इसके अलावा यहाँ पे मेजर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए? सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमने साइन करा, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हमने साइन करा विद द EU एंड इट वाज ओनली पॉसिबल इन 2020, जिसको हम नेगोशिएट कर रहे हैं सिंस 2007. सो 13 साल बाद हम फाइनली इसको अचीव कर पाए. और इससे फ़ायदा क्या होगा? द मेजर बेनिफिट वुड बी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हमें ट्रांसफ़र मिल सकता है. जो हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब हम अब इजीली कर सकते हैं. ऑलरेडी आपको पता है कि फ्रांस, जर्मन कंपनीज, यूके की कंपनीज, यूएस की कंपनीज ऑलरेडी हमें हेल्प करती हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने में. अब अगर EU यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन करता है, तो अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स जो हमने साइन किए हुए हैं विद फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस को अलग हटा दीजिए, विद द कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड सो ऑन, तो ये चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं.
Now, other countries can also come into these kind of agreements with India, wherein we will be talking about or exchanging the expertise, much required resources on the nuclear technology. तो बहुत ही पेंडिंग एग्रीमेंट था ये जो हमने पिछले साल साइन किया. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव रिन्यूड द साइंस एंड टेक कॉपरेशन एग्रीमेंट जो हमने पहले साइन किया था उसको हमने रिन्यू करा है. और इसको आप इस लाइट में देखेंगे दैट वी ऑल्सो हैव कम अप विद अ ड्राफ्ट एस&टी पॉलिसी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके काफ़ी जो बहुत ही ज़्यादा विजनरी पॉलिसी है आप बोल सकते हैं, विच इज़ ट्राइंग टू कैप्चर द एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया एंड इज बोथ बॉटम्स अप एंड टॉप्स डाउन. तो यहाँ पे इस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का रिन्यूअल अगर आप साइंस एंड टेक ड्राफ्ट पॉलिसी के साथ मैच करके देखेंगे सो यू डेफिनेटली विल फाइंड गुड रिजल्ट्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, ये एक ऐसा मैनेस है जिसके दोनों विक्टिम हैं. यूरोपियन यूनियन भी विक्टिम है और इंडिया भी विक्टिम है. अगर मैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की बात करूं लाइक अगेन फ्रांस, इटली, स्पेन, जो भी कंट्री आप लीजिए, मोर और लेस सारी कंट्री आर विक्टिम ऑफ रेडिकलाइजेशन, दे आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, दे आर frustrated with the problem of organized crime, and same is the case with India. So here CBI and Europol, so like Interpol which is an intergovernmental police organization also called as international police, तो intergovernmental एक organization है इसको हम international police बोलते हैं, उसी की लाइंस पे यूरोपोल है जो यूरोपियन नेशंस के इंटरगवर्नमेंटल एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोपियन यूनियन को बेसिकली लीड करती है, उसकी एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है. तो इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन करा है टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग बोथ फॉर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. बिकॉज अगर आपके इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशंस हैं, यहाँ पे आप कोलैबोरेट कर रहे हो, तो इट्स बेटर because now you are in a position to keep check on the financial transactions, to monitor financial transactions, to intercept them, disrupt them, to find the networks of organized criminals, organized crimes, and then subsequently burst them or take action against them. तो जो इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है जो हमने इंटरनल सिक्योरिटी में भी देखा था, वो हमारी मीट होती है बिकॉज नाउ यूरोपियन यूनियन इज इनटू द पिक्चर. इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ भले आपके टाइप्स हो या ना हो, अगर आपके यूरोपियन यूनियन के साथ टाइप है तो इट इज नाउ यू कैन बी एंश्योर दैट द एंटायर रीजन इज कवर्ड. और जो उसकी एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है, गवर्नेंस एक्सपर्टीज है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटीज है, वो भी आप यहाँ से डेफिनेटली रेप्लिकेट कर सकते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव साइंड न्यू मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग. सो ये हम काफ़ी टाइम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं दैट इंडिया हैज़ अज्यूम्ड द रोल ऑफ लीडरशिप in the area of maritime security and each and every country now wants to collaborate with India. So same is the case with the EU, and this is the major reason that we have signed this particular dialogue of new maritime सिक्योरिटी डायलॉग. तो ये यूरोपियन यूनियन को ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमें भी बेनिफिशियल है बिकॉज यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं अगेन जो हमें एक्सेस प्रोवाइड करती हैं टू देयर बेसिस, टू देयर डेटा कलेक्शन सेंटर्स एंड सो ऑन. जैसे हमने देखा था कि फ्रांस ने हेल्प किया है इंडिया को टू गेट इन टू दी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर्स ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, राइट. तो उसी तरीके से अब हम इनकी एक्सपर्टीज भी यूज कर सकते हैं एंड हम इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स जो हमने साइन करे हैं, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो अब हम इनके साथ शेयर कर सकते हैं. तो इंडिया जो अब आईमैक डेवलप कर रहा है एट गुड़गांव इंटरनेशनल मैरीटाइम अवेयरनेस सेंटर, उसमें भी अब यूरोपियन यूनियन से लाइजनिंग ऑफिसर्स आ सकते हैं, उसमें अटेंड कर सकते हैं एंड इट विल देन बिकम मोर रोबस्ट. तो ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज अपने लाइजनिंग ऑफिसर सेंड कर रहा है आईमैक में. यू ऑलरेडी हैव सीन दैट इट इज़ यूके, फ्रांस है और जापान है, यूएस है. तो यूरोपियन यूनियन से भी आप इन द टाइम्स टू कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी अपने लाइजनिंग ऑफिसर्स वहाँ पे सेंड करेंगे, राइट. ओके, then whenever you talk about European Union you cannot forget climate change, sustainable development and urbanization. ये तीन वर्ड्स हैं जो आपको साथ में ही यूज करने हैं, एक साथ आप इनको यूज करेंगे because they are more or less related to each other and India is in dire need of technology, expertise, capacity development in these key areas.
तो हमारा जो अर्बनाइजेशन है एक्सप्लोसिव है, अनप्लान्ड है, आर्बिट्री नेचर का है, एंड सो वी हियर रिक्वायर द मच एक्सपर्टीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड द कंट्रीज ऑफ द सेम। तो आपने जब हमने इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ रिलेशन देखे थे तो देखा था आपने कि जो भी वेस्टर्न एडवांस लिबरल इकोनॉमी है सब हमारे देश में या तो स्मार्ट सिटी में इन्वॉल्व हैं, या फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इन्वॉल्व हैं, या डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स डेवलप कर रहे हैं। तो सेम इज द केस विद द ईयू एज वेल। तो ये भी यहाँ पे हमें अब एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे, वेदर बी इट अर्बनाइजेशन, अर्बन मोबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी, वेदर बी इट रिलेटेड टू द लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट, सप्लाई चेन्स डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी सस्टेनेबल बना सकते हैं आप, और ज़्यादा उसमें आप एनहांसमेंट कर सकते हैं, बिकॉज यूरोपियन यूनियन is best known for the integratedness, that is it is the region which is most integrated, it has the most developed supply chains, most integrated supply chains जो आप replicate कर सकते हैं in India, because India also is vast if I talk in the terms of geography। तो इंडिया को भी वो चीज़ वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। ओके ठीक है, एक लास्ट चीज़ जो आप अगर याद रहे तो मेंशन कर सकते हैं कि 2020 में जो 15 समिट हुई है, एक एग्रीमेंट था 2016 का इंडिया और ईयू के बीच में ऑन क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी, उसको स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। सो बोथ ईयू एंड इंडिया आर वेरी active at the international platforms, at the international level, to combat climate change, to achieve the commitments made under Paris Agreement। तो यहाँ पे भी हम दोनों कन्वर्ज करते हैं, एंड दिस इज वेरी मच रिफ्लेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट ऑफ 2016 which further has been strengthened between India and EU। So this is not only beneficial for India as an individual country, but it will also set an example at the international level that how these two key players are engaging at the international level towards their commitments towards addressing the problems of climate change, mitigation, adaptation of the same, and so on। तो ये मेजर की हाइलाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। लेट अस टॉक अबाउट इरिटेंट्स। और इरिटेंट से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द इंडिया ईयू रिलेशंस। व्हेन एवर यू गूगल इंडिया ईयू रिलेशन, वन टर्म दैट यू विल फाइंड ऑलवेज is the BTIA। So this is the first major irritant between India and EU। So what is BTIA? So like I said that we were negotiating civil nuclear cooperation agreement since 2007। So we also were negotiating another agreement with the EU called as BTIA। Its full form is Broad Based Bilateral Trade Investment Agreement। This is a kind of free trade agreement that we are trying to negotiate with European Union, but we are failing repeatedly। A time came in 2013 when the entire negotiation on BTIA got stalled। It revived in 2015-16, again it got stalled in 2017, and then in 2018 and 19 we did not conduct annual summit between India and EU। So these 2 years are blank। We did not have any annual India EU summit in 18 and 19। So that is why 2020 summit became more important, because there were expectations that अब ये दोनों जो entities हैं ये शायद कोई solution लेके आएंगी कि हमें कैसे BTIA को resolve करना है, because this has become such a big bone of contention that it is now affecting other relations also between India and EU, right? वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। So what is the major bone of contention between BTIA between India and EU? So there are two major contentions. First is of greater market access, and second is of trade in services। So first let us talk about greater market access। So EU wants that greater market access should be provided by India to EU and its products like wine, spirits, automobile sector, and so on। How? By eliminating
bringing down, significantly reducing tariff and non-tariff barriers. But if India opens its market to the EU companies, to the European Union region, specifically in the automobile, wine, and spirit, then definitely our indigenous industry will be affected, adversely affected, because they are very much advanced and they have the potential to capture rapidly the Indian market. So the loss would be of India in the longer run. So that is the reason that we have protected or given or provided a shield to the automobile industry, wine and spirits, so that we can develop them to an extent, to a level, and then we can open the market for further competition. अभी हम रेडी शायद नहीं है कि हम इस लेवल की कंपनीज को, टेक्नोलॉजीज को इंडिया में फ्रीली ऑपरेट करने दें, और ईयू को वही चाहिए. अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो इंडिया ऑल्सो वांट ग्रेटर मार्केट एक्सेस इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स, because that is the potential that we have. Most of the European countries have either stable population or declining population. They do not have the skilled human resource. So we have that potential to provide them the skilled human resource, but they are not very much willing to embrace our human resource, and so they have come up with stringent visa regime. अब चाहे वो वर्क वीजा रिजीम हो या स्टूडेंट वीजा रिजीम हो, बट इट इज stringent. So India says you need to provide greater market access to our professionals. Ease down your visa regime, relax your visa regime, so that we can ensure free movement of people from India to EU, which EU is not ready. So these are some of the areas of bone of contention. Now if I talk about trade in सर्विसेज, तो यहाँ पे आप प्लीज समझिए कि एक डिमांड है इंडिया की, दैट इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड बाय ईयू अ डेटा सिक्योर नेशन. ये एक स्टेटस है जो ईयू प्रोवाइड करता है टू सेट ऑफ कंट्रीज. अब जब ये स्टेटस किसी कंट्री को मिलता है कि एक कंट्री डेटा सिक्योर है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, उसकी कंट्रीज, उसकी कंपनीज, बिजनेस, कॉर्पोरेट हाउसेस इजीली कोलैबोरेट कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं अपना काम. लेकिन अगर ये स्टेटस नहीं मिला है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज कॉर्पोरेट्स, बिजनेस हाउसेज, आईटी कंपनीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू कोलैबोरेट विद द कंट्री, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड एप्रीहेंशंस मेंटेन रहते हैं. तो इंडिया का ये कहना है दैट वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर एंड वी वांट दिस स्टेटस, डेटा सिक्योर नेशन. Only then we will be in a position to compete with you, because हमारा पोटेंशियल है ट्रेड एंड सर्विसेज. अगर आप ये स्टेटस हमें प्रोवाइड करोगे तो बहुत सारा मार्केट हमें मिलेगा, हमें कस्टमर्स मिलेंगे, क्लाइंट्स मिलेंगे ऑफ द यूरोपियन यूनियन, विच टिल नाउ आर रिस्ट्रिक्टेड, जिन्हें अलाउड नहीं है इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना. राइट. तो दिस इज द डिमांड ऑफ इंडिया कि इंडिया शुड गेट डेटा सिक्योर नेशन स्टेटस. तो ये कुछ मेजर रीजंस है जिसके कारण BTIE स्टॉल्ड है. अब इस साल देखिए, ये पहली हाई लेवल ट्रेड डायलॉग हुआ है, और जो लास्ट ईयर मैंने आपसे शेयर करा कि ये 15th सबमिट हुई थी, इसमें एक हाई लेवल ट्रेड कमेटी भी बनाई गई है. हाई लेवल ट्रेड कमेटी में डायरेक्ट एंगेजमेंट इंश्योर करा गया है बिटवीन यूरोपियन यूनियन ट्रेड कमिश्नर एंड दैट ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इनके बीच में डायरेक्ट लेवल के एंगेजमेंट्स इंश्योर करे हैं थ्रू हाई लेवल ट्रेड कमेटी, ताकि हम BTIE में जो भी ये बॉटलनेक्स हैं इसको हम रिजॉल्व कर सकें. द सेकेंड मेजर इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड EU इज चाइना. चाइना एंड EU ने रिसेंटली 30th of December 2020 को एक मेजर ट्रेड डील साइन करी, significant historic trade deal which China was negotiating with EU since 2012-13. So पिछले 6-7 सालों से चाइना इस डील को नेगोशिएट कर रहा था, और उस वक्त आप देखिए सिचुएशन क्या होगी. EU सेम डील इंडिया के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है और चाइना के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है. EU के लिए दोनों रीजन्स पोटेंशियल मार्केट्स हैं, उनसे बड़े मार्केट्स पूरे वर्ल्ड में नहीं है. लेकिन चाइना के साथ जो वो डील नेगोशिएट कर रहा है वो फाइनलाइज हो जाती है. दिस डील इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, CAI. तो ये वर्ड भी अगर आप एग्जामिनेशन में ड्रॉप कर देंगे, सो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज यू विल देन साउंड टू बी एन इन्फॉर्म्ड एस्पिरेंट.
बाकी इसकी निटी ग्रिटीज में आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं को कर देता हूँ कि इस डील में क्या बताया है। तो इस डील में सेक्टर्स पहले रेस्ट्रिक्टेड थे। चाइना का ये कहना था कि हम ईयू को इस सेक्टर में आने देंगे, इस सेक्टर में नहीं आने देंगे, वो सारे हटा दिए गए हैं। उसके बाद पहले चाइना ने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो अब वो कंडीशन भी हटा दी है। सो नाउ ईयू हैज़ गॉट ग्रेटर मार्केट एक्सेस देन द चाइना हैज़ गॉट एक्सेस ऑफ मार्केट इन द ईयू, so it is beneficial for EU. So it has significantly increased the bargaining power for EU with respect to India. तो पहले शायद एक टाइम पे दोनों सेम स्टेज पे थे फॉर EU, बट व्हेन द डील हैज बीन साइंड विद चाइना, तो डेफिनेटली द बार्गेनिंग पावर ऑफ EU हैज इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर उसको ये डील साइन करनी है, तो क्योंकि ईयू की डिमांड तो मोरलेस पूरी हो चुकी है। और अगर मैं ट्रेड की बात करूं ऑफ ईयू एंड चाइना, सो इंडिया और ईयू का ट्रेड मैंने अभी आपको बिलियन डॉलर्स के टर्म में बताया, इट इज नियर अराउंड 90 to 110 बिलियन डॉलर्स। पाउंड यूरोस के टर्म्स में ये 80 बिलियन यूरो है, राइट। कन्वर्ट करोगे अगर आप यूरो को डॉलर में, तो 1.2 का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं चाइना और ईयू की ट्रेड की बात करूं, सो इट इज 140 बिलियन यूरोस। और ये ट्रेड डील साइन होने के बाद ये सिग्निफिकेंटली और इंक्रीज होने वाला है, राइट। तो इंडिया के लिए एक डिफीट है इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज इंडिया ने RCEP से भी विड्रॉ करा, वहां पे भी चाइना ने पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है। देयर ऑल्सो इट इज चाइना हु इज गोना be the benefited most, and same is the case in the EU region, right? तो ये जो चाइना की एंट्री है इन द EU, दिस हैज बिकम अ सेकेंड इरिटेंट फॉर अस। बार्गेनिंग पावर की अगर मैं बात करूं, सो यू कैन काउंटर मी दैट आफ्टर ब्रेक्जिट इंडिया की बार्गेनिंग पावर भी तो इंक्रीज होगी EU के साथ, बिकॉज EU और UK के बीच में ट्रेड इन सर्विसेज के ऊपर डील नहीं हुई है, गुड्स में डील हुई है। गुड्स में हमें मतलब भी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, हम सर्विसेज में डील करते हैं। व्हाट वी वांट इज ग्रेटर मार्केट एक्सेस इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, और वो डील उनके बीच में नहीं हुई है, तो हमारी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है। डेफिनेटली यू आर राइट, हमारी बार्गेनिंग पावर यहाँ पे इंक्रीज होती है। बट अगर आप इस इंक्रीज को चाइना के कारण जो बार्गेनिंग पावर डिक्रीज हुई है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, देन अगेन वी आर एट लॉस। जो कंक्लूजन निकलेगा वो लॉस ही निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, थर्ड मेजर इरिटेंट की बात करते हैं, विच इज द थर्ड मेजर इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड EU. सो द थर्ड मेजर इरिटेंट इज protectionist approach adopted by India under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So this has further irritated EU. EU ये जो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है जो इंडिया ने अडॉप्ट करी है, इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, एंड दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स द नेगोशिएशंस ऑफ BTIA बिटवीन इंडिया एंड EU. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड CAA एंड 370। अगर आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पॉइंट्स पता है कि जो भी एडवांस लिबरल इकोनॉमीज हैं, दे आर डेफिनेटली अटैच विद सर्टेन वैल्यूज लाइक दैट ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सो ऑन। जब भी इनका वॉलेशन होता है किसी भी कंट्री में, चाहे चाइना करे चाहे इंडिया करे, कहीं पर भी, तो ये कंट्रीज दे कम आउट इन ओपन, दे आर वेरी मच आउटस्पोकन एंड दे डू नॉट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स while realizing their while converting their sadness, upset, how much they are upset, ये तुरंत वो convert करती हैं in the actions. So this has happened with India as well, when India came up with the 370 Human Rights Violation Citizenship Amendment Act. तो यहाँ पे इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी वॉलेट होती है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करा जाता है। सो दिस हैज़ अफेक्टेड डेफिनेटली अगेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड EU टू एन एक्सटेंट. So these are major irritants between India and EU. Now let us talk about way forward. In the way forward you should know the areas of convergence, because उसी को आप emphasize करेंगे way forward में, that's it, यही option है आपके पास. तो area of convergence में पहला तो है peace and stability. Point number 1 सबसे significant, peace and stability.
अगेन टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दोनों रीजन्स विक्टिम है और दोनों रीजन्स का कोलैबोरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गिव एन इफेक्टिव फाइट टू these problems of terrorism, radicalization and organized crime. सेकेंड, आप यहाँ पे बात करेंगे ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरा, आप यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की, बिकॉज यूके के अलग हो जाने के बाद ईयू को भी मार्केट अपना वापस इंक्रीज करना है, उसको और ट्रेड पार्टनर्स चाहिए एंड इंडिया को भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमें ईयू से मिलता है। तो ये है 3 मेजर एरियाज और पीस एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, एक लास्ट आप यहाँ पर सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, और चाइना की बात कर सकते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड चाइना। सी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ईयू ने चाइना के साथ CAI साइन करा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईयू को चाइना से कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि सर्टेन वैल्यूज हैं जो ये वॉयलेट होते ही तुरंत एक्शन लेना प्रेफर करते हैं एंड चाइना हैज लेटली बिकम टू मच असर्टिव, whether be it in terms of India or in the South China Sea region or with Taiwan. तो यहाँ पे they have this intention to restrict this assertive attitude of China and for that they need the support of India. This is a shared concern of India. India also needs to restrict the China's assertive attitude, hostile attitude, and for that it also needs the support of international countries, international voices. So ये जो कन्वर्जेंस है ये आप वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हैं, एरिया ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड EU विथ रिस्पेक्ट टू चाइना. सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट इंडिया एंड EU. और यहाँ पे प्लीज ध्यान रखें आप कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें टू दीज पॉइंट्स, बिकॉज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा है कि जब हमने फ्रांस, जर्मनी और UK डिस्कस करा था तो उनको आप यहाँ पे फिलर्स की तरह यूज करेंगे. जो छोटे छोटे से माइन्यूट गैप्स हैं, हो सकता है यूपीएससी की डिमांड जो हो, जो क्वेश्चन वो फ्रेम करे, वो EU इंडिया को लिंक करे विथ US, विथ चाइना, विथ दीज कंट्रीज, विथ UK. तो आपको पता होना चाहिए पूरा सिनेरियो. तो बहुत ही कम चांसेस है कि इंडिया EU पे सोल क्वेश्चन आएगा. अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इंडिया EU को लिंक करता हुआ आएगा, ईदर विथ इंडिया US, इंडिया चाइना, EU चाइना, इंडिया UK, UK EU. तो ये आपको ट्रेस आउट करना आना चाहिए और ये तीनों कंट्रीज हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं, राइट. बाकी इससे ज़्यादा कंटेंट की आपको ज़रूरत नहीं है. EU के साथ आपको एक आइडिया लग गया है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, क्या डेडलॉक्स हैं हमारे, क्या इरिटेंट्स हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, कहाँ हमने काम किया है, क्या हमारी ट्रेजेक्ट्री रही है, क्या ट्रेंड रहा है. यही बेसिक आइडिया बस एक एस्पिरेंट को होना चाहिए, राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं to our next article. It talks about the glacial lake outburst. So glacial lake outburst flood. So this has happened again in the Uttarakhand. Again, why? Because the same situation happened in 2013 during the Uttarakhand floods. Yes, these floods were more or less because of the cloudburst. लेकिन कुछ सेक्शंस, जैसे कि अगर मैं केदारनाथ डेवास्टेशन की बात करूं तो केदारनाथ डेवास्टेशन हुआ था बिकॉज ऑफ द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, and that was because of the cloud burst, right. तो ये दोबारा हुआ है in the Uttarakhand and this time has happened maybe because of an avalanche, maybe because of the over accumulation of water in the glacial lake. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होता क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स, यहाँ पे क्या किया जा सकता है एंड एवरीथिंग. ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस में मैंने डील नहीं करा था बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है तो इस साल के मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट. तो पहले बात करते हैं ग्लेशियल लेक की. नो, व्हाट इज ग्लेशियल लेक? सो ग्लेशियल लेक इज एनी लेक एट द हाई ऑल्टीट्यूड मेनली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ग्लेशियल रिट्रीट or the melting water of glacier.
सिंपल, एक लेमैन की डेफिनेशन है, कुछ भी टेक्निकल आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है। तो अगर मैं ये एक ट्रैक बनाऊं, एक स्लोप है ऊपर, यहाँ पे ग्लेशियर है, अब ये रिट्रीट हो रहा है, राइट। नो व्हेन इट इज मेल्टिंग इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। अब जब ये मूव करता है, जब ये रिट्रीट हो रहा है, तो ये अपने साथ डेब्री को भी साथ में लेके चलता है। डेब्री इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, पेबल, नियर बाय फ्लोरा, आइस, डस्ट, एवरीथिंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज मोरेन। तो डेब्री एक्यूमुलेट होती जाती है अलोंग द पाथ ऑफ ग्लेशियर, and when it accumulates on the lateral sides it is called as lateral moraine, and when it accumulates on the front side it is called as end moraine or the terminal moraine. क्यों बोलते हैं इसको टर्मिनल मोरेन? बिकॉज यहाँ पे आते आते बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द स्लोप्स इंक्लिनेशन, जो ग्लेशियल रिट्रीट है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो moraine starts to accumulate at the terminal of that passage of glacier, and so it is called as end moraine or terminal moraine. अब ये जो sedimentation हुआ है, ये जो deposition हुआ है here of the debris, it acts as a wall, और क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियल मेल्टिंग हो ही रही है तो उसमें से पानी हो रहा है recede, so it then accumulates somewhere here, and these two lateral moraines and terminal moraines acts as the natural wall for this water, thereby giving it a shape of glacial lake. तो ये ग्लेशियल लेक यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। अब आप खुद बताइए कि ये ग्लेशियल लेक कब तक सस्टेनेबल है? जब तक ये वॉल्स सस्टेनेबल है, राइट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब तक जो वाटर एक्यूमुलेटेड है वो ब्रीच नहीं करता है इन एंड टर्मिनल मोरेन्स को या इन लैटरल मोरेन्स को। पॉइंट नंबर 2, या कोई एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म इसकी टेक्टोनिक स्टेबिलिटी को अपसेट नहीं करता है। सो इट इज रेस्टिंग ऑन दीज 3 कंट्रोल फैक्टर्स, राइट। तो ग्लेशियल लेक क्या है, आपको लेमन की डेफिनेशन समझ में आ गई, कैसे बनी आपको ये समझ में आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द फैक्टर्स which lead to the glacial lake outburst. ग्लेशियल लेक का आउटबर्स्ट कैसे होता है? The first factor is हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है that exceeds the pressure of moraine or that exceeds the strength of moraines। अगर इस मोरेन की स्ट्रेंथ को एक्सीड करता है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये इजीली ब्रीच हो जाएगा and this water will start to come out, ये बाहर आ जाएगा पानी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, if there is excessive melting of glacier then this water will start to pile up, इसका लेवल इंक्रीज होगा and again it will breach. So due to excessive melting and subsequent accumulation of water in a glacial lake will automatically breach the moraine. तीसरा पॉइंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। What are the external factors? So first external factor can be a tectonic activity, that is earthquake, volcano, right? Then it can be a landslide or an avalanche. अगर ये साइड से एक अवलांच होता है तो यहाँ पे पूरा ये ब्रेक कर देगा वॉल को, पानी को बाहर फेंक देगा, राइट। तीसरा फैक्टर, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सीज्मिसिटी। अब ये जो रिजर्वॉयर बना है ये आर्टिफिशियल है। डेफिनेटली व्हेन दिस रिजर्वॉयर इज बिल्ट देयर वुड बी आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंस, and in order to again attain isostatic equilibrium there would be a tectonic instability which can again lead to glacial outburst. Fine, so these are some of the reasons. यहाँ पे volcanic reason भी है लेकिन हमारे हिमालय में volcano नहीं है तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं करा। अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है तो आप वोल्केनोस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट रीजन आप डाल सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस।
एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशंस के कारण भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो सकता है. हाउ? ड्यू टू माइनिंग, एक्सप्लोजन्स, ड्यू टू स्लोप डिस्टेबलाइजेशन बाय एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, राइट. तो ये जो मेजर रीजंस हैं, और ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, तो इनके कारण भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होने के चांसेस हैं. तो यही हुआ. अब इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ये अभी जब टीम जाएगी वहाँ पे, मोस्टली वाडिया इंस्टीट्यूट की ही जाएगी, तो वो जब स्टडी करेगी तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे अवलांच हुआ था, या एक्सेसिव मेल्टिंग हुई थी, या टेक्टोनिक शिफ्टिंग हुई थी. टेक्टोनिक शिफ्टिंग होती तो वो सीज्मिसिटी में काउंट हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई है. सो देयर मस्ट हैव बीन एन अवलांच और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द ग्लेशियर लेक, राइट. बिकॉज ऑफ दैट आउटबर्स्ट टुक प्लेस. और ये ग्लेशियर कहाँ का था? नंदा देवी पीक का ये ग्लेशियर था. ओके, नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ डिजास्टर्स? तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं. स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन के थ्रू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे? अब ये जो वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, इफ यू कैन ट्रेस, इफ यू कैन मैप आउट द ग्लेशियर लेक्स, तो पहले तो आपको हजार्ड मैपिंग करनी है, हजार्ड जोनेशन करना है. उसके बाद आपको पोटेंशियल ग्लेशियर लेक्स को आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद आपने इस पानी को अक्यूमुलेट नहीं होने देना है. थ्रू द इंजीनियरिंग मेथड्स यू हैव टू कम आउट विद अ सोल्यूशन कि आप यहाँ से पानी को एक सेफ पैसेज प्रोवाइड कर दो, ताकि ना ये ब्रेक हो मोरेन और ना ही यहाँ पे एक्सेस अक्यूमुलेशन हो. तो ये पानी धीरे धीरे यहाँ से निकलता रहेगा, तो ना ही कभी यहाँ पे एक्सेसिव अक्यूमुलेशन होगा. और अगर इनकेस कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी या एक्सटर्नल मैकेनिज्म के कारण कभी आगे चल के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता भी है, तो वहाँ पे उतना पानी ही नहीं होगा कि वो डाउन स्ट्रीम में जाके डिवास्टेशन कॉज करे. So this is the structural measure that you can take by providing an engineered safe passage to the accumulated water of the glacial lake. फर्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पे आप अगर इसके वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात करेंगे, सो दैट इज नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन, बिकॉज वो बहुत ही फ्रजाइल इकोसिस्टम है. वहाँ पे यू कैन नॉट कम अप विथ मोर सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इट्स बेटर कि आप वो पानी को इकट्ठा मत होने दो. दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू. Apart from this, you can set up monitoring stations. Monitoring stations क्या करेंगे? प्रीकर्सर आपको वो प्रीकर्सर क्या बोलते हैं उसको? नॉट गेटिंग द वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड. प्रीकर्सर साइंस आइडेंटिफाई करेंगे. वो प्रीकर्सर साइंस इन द सेंस कि क्या कोई अवलांच हो सकता है, क्या कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी वहाँ पे हो सकती है, क्या ये जो मोरेन की वॉल्स हैं ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ पे फ्रैक्चर्स हैं या नहीं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रीकर्सर साइंस दैट यू कैन लुक फॉर, एंड दिस इज द वर्क ऑफ दैट मॉनिटरिंग स्टेशन. तो अगर मॉनिटरिंग स्टेशन आइडेंटिफाई कर लेता है तो दैट्स गुड. आप इसको उसके बेसिस पे डाउन स्ट्रीम में वार्निंग स्प्रेड कर सकते हो, एंड दिस विल बिकम पार्ट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम. अर्ली वार्निंग सिस्टम विल डिपेंड अपॉन मॉनिटरिंग स्टेशन. मॉनिटरिंग स्टेशन विल डिपेंड अपॉन प्रीकर्सर साइंस, राइट. ओके, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की मैं बात करूं तो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप जो सबसे पहला काम आपने करना है, दैट इज you should go for sustainable development. You should provide support and strength to the slope which has been destabilized because of the anthropogenic activities. ये लेसन हमने उत्तराखंड फ्लड में ही सीख लेना चाहिए था, जो आज भी हम नहीं सीख पा रहे हैं. अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन किसका हुआ? 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स थे, उनका हुआ. साथ में वो सारे घरों का हुआ, वो कम्युनिटीज का हुआ जो स्लोप पे रह रहे थे, जो स्लोप पे स्टैब्लिश थे. सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेयर डेफिनेटली यू नीड टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ CDRI, सेंदाई फ्रेमवर्क. गेटिंग द पॉइंट?
कंसिडरिंग द फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ हिमालय। इसके अलावा जो हमने क्लीशे पॉइंट्स पढ़े हैं इतने सारे, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस एंड सो ऑन, वो सारे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ से। बाकी यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो ऋषिगंगा में है और एनटीपीसी का है, किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं करना है। आपको बस ग्लेशियर लेक क्या होती है, उसका आउटबर्स्ट कैसे होता है, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, कहाँ हमारा फेलियर है। तो हमारा फेलियर है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा फेलियर है प्रिवेंशन में। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि कब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकती है, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशन, मे बी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रोबस्ट और एफिशिएंट डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन नेटवर्क एंड सो ऑन, राइट। और इसको आगे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो स्लोप पे ना करें, स्लोप को आपको इंटैक्ट करना है, अफॉरेस्टेशन करें स्लोप्स पे। इसके साथ प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंशन के आप सारे मेजर्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने पढ़े थे। ओके, गैस बेस्ड इकोनॉमी में हमने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करा था अपना आंसर, पूरा मैं दोबारा नहीं बताऊंगा सारे पॉइंट्स, की पॉइंट्स अपना डिस्कस कर लेता हूँ। गैस बेस्ड इकोनॉमी में हमारा टारगेट क्या है, 6.2 जो गैस का शेयर है इन द एनर्जी मिक्स मॉडल ऑफ इंडिया, उसको हमें इंक्रीज करना है टू 15% बाय 2030। अब इसको करने के लिए हमारे पास 3 मेजर यहाँ पे अप्रोचेस हैं। तो पहले हमें वर्क करना है सोर्स पे कि गैस आप लाओगे कहाँ से, राइट। तो इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इंपोर्ट कर लो या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लो। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज दिस एंड रिड्यूस दिस ऑब्वियसली। सेकेंड है कि आपने गैस सोर्स कर ली, अब आप उसको प्रोवाइड कैसे करोगे, सो यू नीड अ गुड पाइपलाइन नेटवर्क। एंड थर्ड, आपने गैस सोर्स भी कर ली, पाइपलाइन नेटवर्क भी बना लिया, लेकिन लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, सो यू नीड टू इंक्रीज कंजप्शन। कंजप्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा और एक कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। जो एग्जिस्टिंग फ्यूल है क्या उससे सस्ती है गैस, अगर हाँ तो लोग यूज़ करेंगे। साथ में अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा कि कितनी अवेयरनेस आपने लोगों में जनरेट करी विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स ऑफ गैस बेस्ड इकोनॉमी और यूटिलाइजिंग गैस। तो अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इंडस्ट्री को अगर एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल मिलता है तो इंडस्ट्री के लिए वो बेनिफिशियल ऑटोमेटिकली है। कार्बन ऑफसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, एक इंडस्ट्री पोल्यूशन फ्री बन सकती है एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं रिटेल कंजप्शन की बात करूं तो रिटेल कंजप्शन में डेफिनेटली आपको अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी उसको कम करने के लिए। अब अगर मुझे कॉस्ट कम करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मेरे पास सप्लाई ज़्यादा हो, सप्लाई के लिए मेरे पास सोर्स अच्छा होना चाहिए, राइट, और सस्ता होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को बूस्ट देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन को मुझे एक्सेलरेट करना पड़ेगा, मोर इन्वेस्टमेंट मुझे लेके आना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ों पे हमें फोकस करना है। अब ये जो आर्टिकल है टॉक्स अबाउट द पाइपलाइन नेटवर्क, कि कैसे हमने धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन को इनॉग्रेट करा जो हमारे नेटवर्क सिस्टम को एनहांस करता है। इसके पहले हमने देखा था कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन। So these are few of the initiatives taken by the government of India in order to boost gas based economy of India. लेकिन अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सोर्स में 50% हम इंपोर्ट करते हैं, 50% हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, वेस्टर्न ऑफशोर मुंबई हाई से, ईस्टर्न ऑफशोर कृष्णा गोदावरी बेसिन से। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एंड सो ऑन, ये सारे स्टेट से हम गैस को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। क्या मेजर्स लिए हैं हमने अभी तक, हेल्प पॉलिसी की आप बात कर सकते हैं, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी की आप बात कर सकते हैं, न्यू टैरिफ पॉलिसी गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर लॉन्च करी थी, हम डिस्कस करा था, उसकी बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने मार्केट प्राइजेस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के ऊपर छोड़ दिया है, दैट यू कैन नाउ डिसाइड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो इससे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं एंड
अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम होगा, कंजप्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। इंपोर्ट की बात करें तो 50% इंपोर्ट करते हैं। इस पूरे इंपोर्ट में 50% हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे गैस बेस्ड इकोनॉमी का एक दोबारा फ्रेमवर्क का रिवीजन हो गया हमारा। बाकी ये पॉइंट जो है इस न्यूज़ में, इसको कहाँ ऐड करोगे अपने नोट्स में, इसको ये बीच में ऐड करोगे आप नोट्स में, पाइपलाइन नेटवर्क में। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है वाई वी नीड गैस बेस्ड इकोनॉमी, तो आपके पास तो मल्टीपल पॉइंट्स हैं। टू मेक इंडिया मोर एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मीट ग्लोबल कमिटमेंट्स, रिड्यूस इम्पोर्ट बिल, सो ऑन, राइट। क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने अब तक, तो आप इस तरीके से आंसर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि सोर्सिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं। पाइपलाइन नेटवर्क के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पीएम ऊर्जा स्कीम है, धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन है, कोची मंगलुरु पाइपलाइन है, सो ऑन। अवेयरनेस और यहाँ पे कंजप्शन की अगर बात करनी है तो अगेन आप यहाँ पे पॉइंट को हिट कर सकते हैं, सोर्स वाले पॉइंट को, राइट। अच्छा, सतत इनिशिएटिव भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे सोर्स में, सतत, और कंजप्शन में भी सतत आ जाएगा, सतत। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सीबीजी गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, याद है इसमें टारगेट क्या था इंडिया का, 2025 तक हमें सीबीजी के 5000 प्लांट्स लगाने हैं और सीएनजी को 40% से रिप्लेस करना है। तो ये सब चीजें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। ओके, अब छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, फटाफट देखते हुए चलते हैं, पर्सपेक्टिव समझते हुए चलते हैं। सो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट श्रीलंका ने यूनिलैटरली कैंसिल करा ऑफ ईसीटी, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट इंडिया एंड जापान में, बिकॉज वो कोलैबोरेशन में कर रहे थे। एंड उसके कुछ दिनों पहले ही चाइनीज कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करा श्रीलंका ने। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन द हाइब्रिड विंड एंड सोलार एनर्जी, where it is very much near to the India, that is 45 kilometers to Rameshwaram। 3 islands हैं नियर द कच्चतीवू आइलैंड जो हमने देखा था, विच वॉज सीडेड टू श्रीलंका इन 1950 थ्रू द 1974 एग्रीमेंट। तो वहाँ पे चाइनीज कंपनी को अकॉर्ड करे। तो ये चाइना कैसे इनरोड्स डेवलप कर रहा है, उसमें मल्टीपल पॉइंट्स थे हमारे पास। पोर्ट सिटी डेवलपमेंट, कोलंबो पोर्ट हो गया, उसके बाद हम्बनतोता पोर्ट हो गया, फिर सदर्न एक्सप्रेसवे हो गया, राइट। फिर उसके बाद स्वैप करेंसी एग्रीमेंट हो गया। फिर उसके बाद ये भी आप बता सकते हैं कि अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी चाइना इन्वॉल्व हो चुका है, राइट। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल जिसको आप यूज कर सकते हैं, चाइना ने कैसे इनरोड्स डेवलप करे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंडिया जापान का जो एग्रीमेंट यूनिलैटरली कैंसिल करा है वो कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है, because if it is not discriminatory then the same principle should have been applied also on the Chinese projects, but it was not applied. In fact China was given more projects, okay। अच्छा, ये आर्टिकल है एक तो प्रीलिम्स के लिए किरण सर्विस याद कर लो। किरण सर्विस सेटअप करी है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। क्यों सेटअप करी है, टू हेल्प और टू attenuate the problems of mental health in India. Mental health in the sense stress, depression, suicidal tendencies, उसके लिए एक टेलीफोनिक सर्विस है किरण सर्विस जो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करी है। अब इसमें हमें क्या पॉइंट्स मिलते हैं फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। तो ये हो गया प्रीलिम्स की बात। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में अगर आपको यूथ की बात करनी है, अगर आपको कोविड की बात करनी है, तो आप अच्छे फैक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि 70% कॉलर्स जो हैं वो मेन हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये छोड़ भी सकते हो। सेकेंड, एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है कि किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा कॉल करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा है, ये देखिए 15 से 40 ईयर्स के लोग, ये एज ग्रुप है जो 75% जिसने यूज़ करा है किरण सर्विस को। तो क्लियरली शो करता है कि हमें अगर इंटरवीन करना है टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो वो किस एज ग्रुप के साथ करना है, 15 to 40 ईयर्स। और यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा होता है, और वो लोग हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस को फेस कर रहे होते हैं। सो दिस इज द एज ग्रुप। इसके अलावा स्टूडेंट्स कितना स्ट्रेस फेस करते हैं,
32% कॉल्स वर मेड बाय स्टूडेंट्स। तो ये 4 फैक्ट्स हैं मेंस के लिए। एसए में यूज कर सकते हो, GS1 में, एथिक्स में यूज कर सकते हो, GS1 एथिक्स एसए कहीं पे भी यूज कर सकते हो कि केरल सर्विस में मैक्सिमम कॉल्स किसने किए हैं। तो मेंटल हेल्थ की किनको ज़रूरत है, क्यों हम फोकस करते हैं फिट इंडिया कैंपेन पे, क्यों स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को फर्दर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लाइक द खेलो इंडिया यूथ, प्रमोट करने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स को, बिकॉज स्पोर्ट्स काफ़ी हद तक बस्ट करता है स्ट्रेस को, काफ़ी हद तक लोनलीनेस को दूर करता है। कैसे अर्बन लाइफ स्टाइल्स अफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को, बिकॉज ऑफ द lifestyle approach that we use or we adopt in the urban areas. The tendency of remaining isolated from the society is also paving way for these kind of mental health problems. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और डेमोग्राफिक डिविडेंड में आप इसको यूज कर सकते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर इफ दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट एड्रेस्ड, राइट। ओके, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन। तो इंटरनेट शटडाउन पे हमने काफ़ी सारी बात करी है पहले भी। एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडिया का फर्स्ट पोजीशन है अक्रॉस द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग इंटरनेट शटडाउन। जो सेकेंड कंट्री है दैट इज वेनेजुला, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हमने इंटरनेट शटडाउन अप्लाई करे हैं। ओके, सो इंडिया इज बेसिकली दी कैपिटल ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स। कहाँ अप्लाई करे हैं? एक जम्मू कश्मीर में और एक नॉर्थ ईस्ट में। सो दिस क्लियरली शोज कि हम सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करने के लिए इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लियरली शो करता है लूप होल्स किसके? सिक्योरिटी एजेंसीज के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, दैट दे आर नॉट एबल टू डेवलप द कैपेसिटी टू डील विद द सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑन द साइबर फ्रंट, रादर दे आर रिसोर्टिंग टू द इंटरनेट शटडाउन्स। फिर यहाँ पे एक जजमेंट आता है अनुराधा भासिन का 2020 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो अक्सर कंफ्यूज किया जाता है बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, एंड इफ यू से दिस यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज अनुराधा भासिन जजमेंट में राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट या नहीं, इस पे तो क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन था कि जो आर्टिकल 370 अब्रोगेशन के बाद इंटरनेट राइट्स को कर्व करा गया है इन जम्मू एंड कश्मीर, हाउ फार इट इज अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे टेस्ट लगाया गया, एक टेस्ट प्रोड्यूस किया अनुराधा भासिन केस जजमेंट ने। क्या था वो टेस्ट? अगेन द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिकली जो राइट टू इक्वलिटी में लगता है, पुट्टास्वामी केस में है कि आपके पास एक लॉ होना चाहिए, लॉ इन द सेंस आपके पास एक ऑर्डर होना चाहिए। इन द केस ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन लॉ होना चाहिए, प्राइवेसी का वॉलेशन करना है। तो टेस्ट ओवरऑल सेम ही है। तो मीन्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं आपके, उन दोनों के बीच में एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ डील करना, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। मैंने मीन्स क्या अडॉप्ट करा है? मैंने इंटरनेट शट डाउन कर दिया। क्या ये रैशनली वैलिड है? ये चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर ये रैशनली वैलिड है तो ठीक है, आपका जो आपने जो ऑब्जेक्टिव, आपने जो मीन्स लिया है अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, दैट इज राइट। अगर नहीं है सो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड एंड इंटरनेट सर्विसेज वुड बी रीस्टोर्ड। तो ये टेस्ट अनुराधा भासिन ने इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी अप्लाई करा। तो इंटरनेट शटडाउन की जब भी आप बात करोगे तो ये टेस्ट मेंशन कर देना कि अनुराधा भासिन जजमेंट ने जो टेस्ट मेंशन करा था वो बार बार फ्लाउट किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फार्म प्रोटेस्ट हुई तो सिंधु बॉर्डर में उन्होंने इंटरनेट सर्विसेज शट डाउन कर दी। गेटिंग द पॉइंट? तो क्या ये अनुराधा भासिन जजमेंट को मीट करता है, उसके टेस्ट को मीट करता है? अब मैं बात करता हूं राइट टू इंटरनेट की, जो कंफ्यूजन है। तो अनुराधा भासिन जजमेंट ने ये बोला था कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी, और सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आप इंटरनेट को एज अ मीडियम यूज कर सकते हो, एंड सो यूजिंग इंटरनेट एज अ मीडियम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिकल 19 इज अ फंडामेंटल राइट। डिफरेंस समझो आप।
राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट। व्हाट इज राइट टू इंटरनेट? अगर आप इंटरनेट को मीडियम की तरह यूज करते हो टू एक्सप्रेस आर्टिकल 19, देन इट इज फंडामेंटल राइट। तो ये मेरी फंडामेंटल राइट है कि मैं अपने आर्टिकल 19 को यूज कर सकता हूं ओवर द इंटरनेट। मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, दिस इज माय फंडामेंटल राइट। सो दिस मीडियम हैज बीन प्रोटेक्टेड। राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट नहीं बोला है। तो ये एक क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करनी थी। बाकी यहाँ पे और क्या है, बाकी ये देखिए फिगर चेंज हो गया। हमने एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें 44,000 का लॉस बताया था, इकोनॉमिक लॉस। यहाँ पे 20,000 का इकोनॉमिक लॉस है, लेकिन यहाँ पे इसको सब्सटैंशिएट नहीं करा है किसी रिपोर्ट के थ्रू। तो मैं अभी भी बोलूँगा कि आप इस रिपोर्ट पे ही जाना, 44,000 का लॉस कोट करना कि इंटरनेट शटडाउन से इंडिया को हुआ है। और वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट थी, यूएस का इंस्टीट्यूशन था, चाहो तो उसको कोट कर देना यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे भी कंक्लूड इसीलिए किया गया है दैट वी नीड टू अपग्रेड आवर साइबर इंस्टीट्यूशंस, साइबर फ्रेमवर्क, एंड not resort every time to internet shutdown in order to meet security challenge. Rather, upgrade ourselves, prepare ourselves to deal with any kind of challenge on the cyber front as well. तो सिक्योरिटी फोर्सेस का बेसिकली यही तो काम है, यही तो उनका मैंडेट है, दैट यू शुड चैलेंज द नॉन स्टेट एक्टर्स ऑन द फ्रंट ऑफ देयर ओन चॉइस. Now, whether this is the land front, water front, jungle front और the cyber front, space front, जो भी front वो जो चूज करते हैं, आप उनको चैलेंज कर सको effectively. This is the mandate of security force. So why are you not upgrading yourself? और सिक्योर और इंटरनेट शटडाउन को अप्लाई करने से कुछ फायदा तो वैसे भी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स कब हुए? 2020 में हुए। किसके? मिलिटेंट्स के। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा नई ऐप्स बन गई हैं जो लो स्पीड इंटरनेट पे भी काम करती हैं, दैट इज 2G पे काम करती हैं अब। तो अब इसको कैसे मीट करोगे आप, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसके कारण शायद 2 दिन पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी को रीस्टोर कर दिया गया है इन जम्मू एंड कश्मीर फाइनली. So 4G services have been restored in Jammu and Kashmir finally. Okay. डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, जहां पे आपको पता होना चाहिए डीपीपी के बारे में 2020, थोड़ा सा पता होना चाहिए 2016 के बारे में, ताकि रिलेट कर सको कि क्या चेंजेस करे हैं. इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ पे पोटेंशियल रखता है इंडिजनाइजेशन का. तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है एलसीए के बारे में, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, दैट इज दी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट. इसके अलावा हमने स्कॉर्पियन क्लास डेवलप करी है, सबमरीन्स. प्रोजेक्ट 17A के बारे में मैंने आपसे बात करी है, राइट. इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के केस में आप आईमैक की बात कर सकते हो. तो ये हो गए सब आपके इंडिजनाइजेशन, जहाँ पे इंडिया एक्सपर्टीज एज ऑफ नाउ रखता है. अब दूसरा यहाँ पे कंपोनेंट आता है कि क्या हम सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं. देन दिस शुड नॉट बी आवर ऑब्जेक्टिव. वी डेफिनेटली हैव द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो टू केटर द डिफेंस नीड्स ऑफ आवर नेबरहुड एंड ऑल्सो ऑफ दैट ऑफ द एक्सटेंडेड नेबरहुड. तो नेबरहुड में भी हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज ये एक एरिया है इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी का वीकेस्ट कंपोनेंट है, कि हमने कभी भी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स में डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करे हैं. वी हैव रिमेन्ड अ वीकेस्ट प्लेयर. हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, अपने शिप्स भेज देंगे, लेकिन हम उस कंट्री को कभी अपने वेपन्स टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद ही नहीं है. सो दिस इज द रीज़न कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला था कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं. 9,000 करोड़ रुपीस के तक हमने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करे हैं डिफेंस के. सो वी शुड नाउ स्टार्ट टू लुक across our neighborhood, extended neighborhood, for the more consumers, for the more clients and so on. और स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत है. कैसे करोगे? जो आपका वेंडर बेस है आप उसको वाइड बनाओ. वाइड बनाओगे तो एमएसएमई को फ़ायदा होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और इससे आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर पुश प्रोवाइड कर सकते हो.
इसके अलावा फाइनेंस कमीशन, हमने देखा था कि फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला कि मोनेटाइजेशन करो अपनी लैंड का। सबसे ज़्यादा जो आइडल लैंड है वो डिफेंस सेक्टर के पास है। इसके अलावा टैक्स फ्री डिफेंस बॉन्ड्स को रिलीज करो ताकि आपको पैसा मिले जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और क्या करो, इसके अलावा बोला था कि डिसइन्वेस्टमेंट करो ऑफ दी डिफेंस पीएसयूज। इससे फायदा क्या होगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट का हमेशा दो ही फायदे होते हैं। एक होता है एफिशिएंसी बढ़ जाती है पीएसयूज की, प्रोफेशनलिज्म आता है, और दूसरा होता है कि गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, तो वो पैसा आप कहीं और यूज कर सकते हो। तो ये कुछ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, ये इकोनॉमिक सर्वे के रिकमेंडेशंस थे, ये आप साथ में यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि एक्सपोर्ट मार्केट कहाँ है इंडिया का। तो मैंने आपके साथ बताया है कि एक्सटेंडेड नेबरहुड में एक तो सीएलएमवी रीजन हो गया, जहाँ पे वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर नहीं, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज आर लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया फॉर देयर डिफेंस नीड्स। हम ऑलरेडी वी आर डीलिंग विद देम इन द मिसाइल डेवलपमेंट लाइक ब्रह्मोस एंड सो ऑन। अग्नि भी हम वहाँ पे सेल आउट करने की बात कर रहे हैं बिकॉज दैट इज आर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। अब यूक्रेन ने भी इंडिया के साथ परचेज करना स्टार्ट कर दिया, सो दिस इज वेरी गुड थिंग। तो हम कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सकते हैं, कौन से हमारे पोटेंशियल मार्केट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स जब लिखने होते हैं तो ये कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए। आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ यूक्रेन ने इंडिया के डिफेंस खरीदे हैं, दैट इज इट, राइट। तो यहाँ से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी हम जा सकते हैं। ओके, वैक्सीन डिप्लोमेसी का बस आपको ट्रैक रखना है, इसके लिए मैंने ये आर्टिकल इंक्लूड करा है कि एक बार गो थ्रू करते रहा करो कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में हम क्या क्या केटर कर रहे हैं, किस किस रीजन को केटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को रिविजिट किया जा रहा है। लॉस्ट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जो यूएनएससी का हमारा एजेंडा है, रिविटलाइजिंग द ट्रेडिशनल टाइज, वो सब हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं टू द वैक्सीन डिप्लोमेसी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, सब जगह हमने वैक्सीन प्रोवाइड कर दी हैं, और अब अफगानिस्तान को भी हमने प्रोवाइड कर दी हैं। सो दिस इज द केस ऑफ वैक्सीन डिप्लोमेसी, रिवाइवल ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया अगेन कमिंग आउट एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस एंड हैज ऑलवेज रिमेन्ड एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑल्सो। तो ये सारे आर्टिकल्स थे जो आप के साथ डिस्कस करने थे। किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो ये कॉम्बो ऑफर्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। प्लस कॉम्बो अगर आप चूज़ कर सकते हैं, करते हैं, दैट इज प्लस सब्सक्रिप्शन है एनुअल, और साथ में कॉम्बो प्लान है यहाँ पे जो इंक्लूड करता है ऑप्शनल एनुअल सब्सक्रिप्शन को। तो एक प्लस प्लस ऑप्शनल, ये आपको पड़ता है 70,100 रुपीज़ का। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मेरा कोड यूज़ करते हो नमन। ये सिर्फ फरवरी तक वैलिड है बिकॉज इसके बाद डिस्काउंट कम होने वाला है 5% पे। तो 63,000 में प्लस का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको और ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 साल का। अगर आइकॉनिक के साथ ऑप्शनल लेते हो 1 साल का तो 88,000, यहाँ पे कोड यूज़ करते हो नमन, 10% ऑफ, तो अराउंड 80,000 में आइकॉनिक मिल जाएगा और साथ में ऑप्शनल भी मिल जाएगा। तो अगर प्लान कर रहे हैं आप लोग तो ये प्लान कर सकते हैं। और आइकॉनिक की प्राइस भी इंक्रीज होने वाली है, तो 25 जनवरी को पहले डेट थी, ये हटा दी गई है, लेकिन प्राइस चेंज डेफिनेटली होने वाली है ऑफ आइकॉनिक। तो फरवरी आपके लिए बेस्ट मंथ है अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, बिकॉज एक तो आइकॉनिक की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और दूसरा जो 10% ऑफ अभी आपको मिलता है वो रिड्यूस हो जाएगा टू 5%। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस कि कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे।
Okay. Thank you all for your patient listening. Have a great day ahead.